Are you able to hear Rajat? Yes, sir. Okay. No, you are able to hear me. Rajat, can you speak? Sir, both. Sir, both. Sir, both. Yes, sir. That I am audible to them. Sir, both. I'm not able to hear you. Are you able to hear Rajat sir? Yes. Okay. So I don't know. Your screen shows muted to me, Rajat. Sir, I'm sir, not you sure what can is you can happening. see the other screen. I am having two screens. Two screens. Let me drop off and join again. Okay. Okay, sir. सो आर्यन मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा था तो अभी आइस को कम्युनिकेट कैसे करना है हैंड से वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो कि हमारी ब्रेन की कॉन्शियसनेस और अपना ब्रेन है ठीक है तो अपना ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि आइस ने देखा है पेन टेबल पर रखा है आपका हैंड जाएगा और उस पेन को उठा के लाएगा सो आपका जो आप यूजर हो गए ठीक है तो यूजर के और हार्डवेयर के बीच में जो काम कर रहा है दोनों को कनेक्ट जो कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओके Thank you, sir. अंडरस्टूड Yes, sir. Right. ओके वेलकम आर्यन और किसी का कोई डाउट कल के सेशन से रिगार्डिंग सो एक छोटा सा क्विज कर लें फिर कल के सेशन का वन और टू Yes, क्वेश्चंस sir. का है ना तो ये बता कौन सा बोलना है आपसे चलो ठीक है कैन यू नेम एनी थ्री पार्ट्स ऑफ अ हार्डवेयर and their reasons. The same question that we asked yesterday, their functions. Okay, three parts of any hardware and their functions. You can name any hardware parts. Yes, Adya. Sir, the first is the uh, Adya, your voice is not coming. Hello. Yeah, Shekhar, you can go next. the three parts of hardware. The three parts of hardware are Hmm. the keyboard, mouse, and speaker. The speaker gives the sound that we hear, and the mouse controls the cursor on the PC, and with the help of the keyboard, we can type letters on the PC. Good, Shikhar. Very good. Riyan. Sir, the three parts of hardware and the reasons are CPU, central processing unit, and the brain of the computer, monitor, the display or the screen of the computer, and keyboard. And keyboard helps us to give the input in the computer. Yes, very good, Riyan. So, next question and last question. Then we will start our today's lecture. Can you remember any two principles that you need to follow while using public systems? Any two. Yes, Riyan. Ma'am, sir, the two things we have to take care of while using a public computer or at the public library, that we should always, if we log in with our account, sir, we should always log out before going. And the second thing, we should not use our personal USB drive. Okay, good. Shikhar, you have also raised your hand. Na? Mhm.
Can you name any two principles that you need to follow in public systems while using them? You should always log out before using the public system and Always use incognito mode, है ना? Incognito नहीं भूलना है. Try to use incognito as much as possible. ठीक है? okay sir. ओके. चलो तो अपन अब अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Yeah, today's topic is internet ethics. आप सभी लोग इंटरनेट यूज करते हो? Yes, sir. Yeah, so we Yes, will sir. now learn, understand sir. about the internet ethics. Yeah, over to you, Rajat. Okay, thank you, sir. So our today's module is internet ethics. Yesterday we learned about our personal computers. It is basically an introduction. So today we are going to know how to use internet responsibly. Basically, there are two things. Like if you have a knife, you can use it to cut fruits also, and you can use it to harm other one also. ठीक है? So there you always have two or more options of using a thing which you all are already having. Internet is like this only. It's a very sharp knife. If you use it responsibly, it is beneficial for you and others. And if you use it responsibly, it can lead to a disaster also. So that's why today we are focused on internet ethics. So let's start. Ethics means doing the right thing. ओके. आपने स्कूल में भी अपने पेरेंट्स से भी बचपन से सुनते आ रहे होगे कि बेटा ये सही नहीं है, इसको ना करो, ये सही है, इसको करो. वही चीज अपनी एथिक्स होती है. ठीक है? द यूज ऑफ अ थिंग रिस्पॉन्सिबली कम्स अंडर एथिक्स ओनली. ठीक है? तो इसी तरीके से जैसे हर चीज के एथिक्स होते हैं कि हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स से जा स्कूल के अंदर हमें एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना है. तो वो सब क्या आ गया, हमारे एक एथिक्स के अंदर आ गया. इसी तरह से इंटरनेट के एथिक्स होते हैं, यानी कि वो रूल्स जो हमको बताते हैं कि इंटरनेट को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली हम यूज कर सकते हैं, है ना? तो वो इंटरनेट एथिक्स हो गए. मैंने कल भी आपको बताया था, कोई टर्म समझनी है उसके वर्ड्स को ब्रेक कर दो. आपको पता है एथिक्स का मीनिंग ये हो गया, इंटरनेट का मतलब आप जो यूज कर रहे हो उसके एथिक्स. कल को कोई आपसे बोलता है कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, वहां पे आपको एक एथिक्स फॉलो करने हैं, मतलब आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना होता है कि अपने से बड़ों को नमस्ते करते हैं ना, वो सब तरीका. तो हर चीज के अपने अपने एथिक्स होते हैं. इसी तरह से एक इंटरनेट का भी एथिक्स होते हैं. अब ऑनलाइन एक्शंस शुड शो रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस जस्ट लाइक इन रियल लाइफ. ठीक? आपको एक तरीके से रिस्पेक्टफुली देखनी है चीजें, ऑनेस्टी के साथ देखनी है, और फेयरनेस के साथ देखनी है, जिस तरीके से अपन रियल लाइफ में देखते हैं. अब इंटरनेट एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? आप कभी भी किसी पे, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आप उस पे भरोसा क्यों करते हो? क्योंकि आपको उसके ऊपर एक ट्रस्ट है, आप उसकी एक म्यूचुअली रिस्पेक्ट की आपकी फीलिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की दोनों के बीच में, है ना? तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है. अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो एक जो आपकी डिजिटल कम्युनिटीज हो गई, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, या फिर कोई जैसे एक स्टैक ओवरफ्लो साइट होती है, वहां पे अलग अलग लोग आते हैं, वो बताते हैं कि मेरे को ये डाउट है, तो दूसरा बंदा जिसने वो डाउट फेस किया होता है वो उसको सॉल्व करके उसका आंसर दे देता है. तो फिर वो उस आंसर को यूज करता है, क्यों? उस पर एक ट्रस्ट है उस कम्युनिटी में कि हाँ, इसने अगर मेरे को ये सॉल्यूशन दिया है तो मैक्सिमम टाइम्स होगा कि ये मेरी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर देगा. अगर वहां सब गलत गलत आंसर देने लगे, कोई क्वेश्चन पूछता है और वहां पे कोई आंसर गलत दिए जाए, तो उसको फिर वहां पे ना एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आ जाती है कि भाई नहीं यार, पहले भी किसी ने मेरे को आंसर दिया था, उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. So while using internet, it is very necessary to build a trust among the users and the communities, and a feeling of mutual respect is built with as the trust builds. Okay. तो प्रोटेक्ट अदर राइट्स एंड फीलिंग्स. कभी भी इंटरनेट पर आप देखते होगे कोई किसी को बुली कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो वो सही बात नहीं होती है. हमको दूसरों के राइट्स और उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, ये बात उसके पर्सनैलिटी को या उसके इमोशंस को हर्ट कर सकती है. सो वी शुड यूज इट रिस्पॉन्सिबली. कीप्स द इंटरनेट अ सेफ एंड पॉजिटिव स्पेस.
तो इससे क्या होता है, अगर एक ट्रस्ट बन जाएगा ना, एक रिस्पेक्ट बन जाएगी, दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाएगी, तो वो एनवायरनमेंट उतना ही सेफ बन जाएगा, उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कोई नहीं चाहता कि हाँ नेगेटिविटी फैले इधर उधर, नेगेटिविटी से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, डिस्ट्रेस की भावना हो जाती है। तो उन चीजों से बचने के लिए हमें इंटरनेट के एथिक्स पता होने चाहिए। अब हम इंटरनेट के एथिक्स ही क्यों सीख रहे हैं? आजकल कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना इंटरनेट के वर्क कर रही हो, कुछ भी। आपको कोई चीज चाहिए, आप इंटरनेट पे जाओगे, फाइंड कर लोगे। आप क्लासेस ले रहे हो, वो इंटरनेट की बदौलत चल रही हैं। आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हो, तो उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। मेल भेज रहे हो, उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। तो जब इतनी, क्या कहते हैं, इसका यूज केस इतना बड़ा है, तो इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसको एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हुए उसका सही उपयोग करें, यानी कि उसका सही यूज करें। ओके। तो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑनलाइन, आपको, आप ऑनलाइन कैसे रिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखा सकते हो, इसके बारे में जानते हैं। हमेशा आपको पोलाइट रहना है, काइंड रहना है, चाहे आप किसी से चैट कर रहे हो, ईमेल भेज रहे हो या पोस्ट भेज रहे हो, है ना। किसी से भी आपको चैट के अंदर कुछ अब्यूजिंग वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, या कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। तो ये अच्छी बात नहीं होती है, एंड इट्स अ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ योर्स ऑल्सो, है ना। थिंक बिफोर यू कमेंट। आप देखते होगे बहुत सारे लोग जो है, अभी आप में से हो सकता है उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट हो, है ना। आप सोशल मीडिया छोड़ो, आप क्लास में भी बैठे हो, तो आप कमेंट कभी कभी ना चाहते हुए भी आप दूसरे के प्रेशर में आके कमेंट ट्रिगर कर जाती है आपकी। आप किसी को कमेंट कर देते हो, यार देख वो आज कैसे आया है ना, या फिर यार देख आज उसने होमवर्क नहीं किया। तो ये कमेंट पास करना हो जाता है। कुछ भी आप जो दूसरे के बारे में बोल रहे हो उसको अपन कमेंट बोलते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव्स आते हैं। उसमें कोई आपको ट्रिगर करने के लिए कमेंट डाल देगा कि हाँ, या तो आपके रिलीजन को टारगेट कर सकता है, आपकी कंट्री को टारगेट कर सकता है, या हो सकता है आप उस पोस्ट में हो तो वो आपको ही टारगेट कर दे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि फेक कमेंट्स आते हैं। कोई एक कमेंट आपको ट्रिगर कर जाएगा, उसने आपके बारे में बोला और आपने उसको दिल पे ले लिया। फिर वो दूसरा बंदा उस पर कमेंट करेगा। तो कमेंट करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, कि ये क्या सच है, ये जो न्यूज मेरे पास आई है क्या ये झूठ है या सच है। आप पहले उसे फैक्ट चेक कीजिए। फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अगर उसे देखिए कि वो नेसेसरी है कि नहीं, आपसे रिलेटेबल है कि नहीं है, कमेंट करना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ना, जैसे कि आप देखते होंगे ट्विटर पे भी अभी @ ग्रोक करके आप डालते हो ना, फैक्ट चेक दिस, तो वो फैक्ट चेक करके बताता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन फेक है या ट्रू है। चीजें आजकल इंटरनेट पे इतनी मिसलीडिंग हो गई हैं कि आपको लगेगा ये सही है, आप उस पर कमेंट कर दोगे, फिर वो वायरल हो जाती है, तो वो एक तरीके से मैस बन जाता है। सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू कमेंट। उसे चेक कीजिए कि इज इट ट्रू, इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड, इट शुड नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग, है ना। अवॉइड बुलिंग, ट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग हेट। किसी को इंटरनेट के ऊपर आपको बुली नहीं करना है। किसी की पोस्ट पर जैसे कि आप कमेंट में किसी को बुली कर देते हो, या फिर आप मीम्स बना के डाल देते हो अपने साथ वालों की। तो इस तरीके से इन चीजों से, बुलिंग से, ट्रोलिंग से और हेट से बचना है। आपको हेट नहीं फैलाना है, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर्स पीपल ओपिनियन इवन इफ यू डिसएग्री। अब क्या होता है यहाँ पे कि हर एक बंदे को अपना पॉइंट रखने का अधिकार होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप रिस्पॉन्सिबली रख रहे हो, या फिर आप भी दूसरे के तरह उसे, मतलब इधर उधर वाले तरीके में रख रहे हो। अब क्या हो गया, किसी बंदे ने आया, उसने अपनी ओपिनियन दे दी कि हाँ ठीक है ये बात है। अब आपने बोला कि नहीं नहीं, आप उससे वहां पर डिबेट करने लग गए। वो डिबेट एक हेट में बदल जाती है, फिर वो फाइट में बदल जाती है, फिर वो एक अब्यूजिंग वर्ड वाली वे में चला जाता है, और एक वो बिल्कुल अपने टॉपिक से अलग हो जाता है ना। तो अगर सामने वाला अपनी ओपिनियन रख रहा है, आप ओपिनियन रख दो, उसे डिबेट नहीं बनाना है, खत्म। एवरीबॉडी हैज देयर राइट टू पुट देयर ओपिनियंस, क्योंकि हम एक फ्रीडम भरी कंट्री में जी रहे हैं। वी हैव राइट टू स्पीच, बट वी शुड नॉट मिसयूज दिस राइट टू स्पीच, ओके। We should use every right that we have responsibly and with mutual respect, such that it may not spread hate and it may not hurt anybody's feelings. Don't interrupt, yell in caps or spam others. स्पैम, स्पैम एक टर्म होती है फ्रॉड के, फ्रॉड से आप रिलेट कर सकते हो। किसी ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, आपके पास स्पैम मैसेजेस आते हैं,
जैसे कि इसका ड्रीम 11 का बहुत सारे स्पैम्स आते हैं, विंजो गेम्स के आते हैं। वो क्या करते हैं कि यू हैव अर्न 5,000 रुपीज, जस्ट क्लिक दिस लिंक एंड यू विल बी गेटिंग 5,000 रुपीज टू प्ले योर गेम। ओके, तो उसमें क्या हो गया, उसने आपको स्पैम किया, आपने उसका देख के कि ठीक है मेरे पास 5,000 रुपीज है, मैं अभी गेम खेलूंगा, जैसे कि वो ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। तो उधर आप गए, आपने वो खेला, आप 5 के 5,000 रुपए हार गए। अब क्या होगा, आपको ना वो एक एडिक्शन लगा देते हैं कि हाँ नहीं नहीं, क्या पता मेरे अगली बार पैसे बन जाए। तो आप उसमें फिर बाद में बंदा फिर से पैसे डालता है, करता जाता है, फिर एक टाइम पे ना वो उसका वहां पे लॉस शुरू हो जाता है, उसकी मनी जाने लगती है, उसे पता भी नहीं लगता कब उसके साथ स्पैम हो गया। तो ना हमें स्पैम करना है, ना किसी के स्पैम में फंसना है, किसी के ऊपर हमें ये सब चीजों से मतलब बच के रहना है। अब गोल्डन रूल्स क्या होते हैं ऑफ ऑनलाइन रिस्पेक्ट? ट्रीट पीपल ऑनलाइन द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। अब आप जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, या कहीं भी जा रहे हो, तो आप चाहोगे कि सब आपसे प्यार से बोलें कि हाँ बेटा कैसे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो, है ना? तो आप चाहते हो कि सब लोग आपको प्यार से ट्रीट करें, आपको रिस्पेक्ट के वे में देखें, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट के वे में देखें। तो आप भी दूसरे को अगर रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, है ना? जैस वो एक बहुत पुरानी कहावत होती है हिंदी में, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यानी कि जिस तरह से आप दूसरे लोगों को ट्रीट करोगे, सेम ट्रीटमेंट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम देम। अगर आप जा रहे हो, आप किसी पे चिल्ला के बोल रहे हो, किसी से बदतमीजी से बोल रहे हो, तो वो भी सामने वाला आपसे बदतमीजी से बोलेगा। लेकिन अगर आप उनसे पोलाइटली बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा भी आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। तो इसी तरह से अगर आप इंटरनेट का यूज करके एक पॉजिटिव वे में जा रहे हो, तो आपको देखकर ना 4 लोग और पॉजिटिव वे में उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर एक बंदा उसका गलत उपयोग करता है, तो फिर बाद में क्या होता है कि उसको देख के अरे यार उसने ये ऐसे किया, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, तो उस चीज में हमको नहीं फंसना है। सो ऑलवेज ट्रीट पीपल ऑनलाइन द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, है ना? आजकल अभी फिजिकल कांटेक्ट इतना नहीं है जितना आप इंटरनेट पर लोगों से मिल रहे हो। सो इस तरीके से जैसे आप फिजिकली मिलते हो, उसी तरीके से इंटरनेट पे भी ट्रीट करना है। यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपको हमेशा पोलाइट लैंग्वेज और काइंड लैंग्वेज यूज करनी है। किसी से बदतमीजी में बात नहीं करनी है, कोई कमेंट ऐसा नहीं देना है जिससे किसी को हर्ट हो, या फिर क्या कहते हैं, अपनी जो एथिक्स हैं उनसे बाहर जाकर कभी किसी से अपन को कोई बात नहीं करनी है। लिसन एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली। एक वो होता है कि अ गुड लिसनर इज स्पीक लेस। ओके, तो इसमें क्या होता है, अच्छे से सुनो, पहले सामने वाला क्या बात कह रहा है, तुम बोलना बाद में, पहले उसकी बात सुन लो। हेलो? तो सामने वाला क्या कह रहा है पहले वो सुनना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर होगे ना, तो आप अपना पॉइंट इतने फैक्चुअली रख पाओगे कि फिर आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि हाँ, लिसनिंग कम्स बिफोर स्पीकिंग। पहले अच्छे से सुनो कि हाँ सामने वाला क्या बात कर रहा है, फिर उसका रिस्पॉन्ड दो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि उस सामने वाला अपनी बात कर रहा है, कोई सेंटेंस बोल रहा है या आपको ट्रिगर कर रहा है, उसके बाद आपने उसकी बात खत्म नहीं होने दी, आपने अपने थॉट पहले रखना शुरू कर दिया, तो वो एक फाइट में बदल जाती है। वो फिर एक पॉइंट टू पॉइंट वाली बात नहीं रहेगी, वो एक आप चिल्लाने लगोगे, ठीक है, वो आपकी बात काटेगा, आप उसकी बात काटोगे, तो आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, या फिर वो एक वॉयलेंस में भी बदल सकता है इन द वर्स्ट केस। तो इसी तरह से अगर आप सामने वाले को, ठीक है ओके, आई एम लेटिंग यू फिनिश योर योर सेल्फ फर्स्ट, देन आई विल स्पीक, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, आपने पहले सामने वाले की बात सुनी, आपने अपने दिमाग में उसको प्रोसेस किया, यानी आपके दिमाग के सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, ठीक है इसने ये पॉइंट रखा है, ओके। अब उस प्रोसेस के रिस्पॉन्ड में आपने उसको एक रिस्पॉन्स दिया, जो कि एक फैक्ट बेस्ड हो सकता है या फिर एक अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स हो सकता है। तो सामने वाला जब देखेगा ना कि हाँ कि इसका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल बराबर का आ रहा है और अच्छा आ रहा है, तो वो भले ही उस चीज को अप्रिशिएट ना करे, बट वो इंटरनली रियलाइज करेगा कि यस, दिस पर्सन हैज अ गुड नॉलेज and it's factually correct. So always listen first and respond thoughtfully. Report bad behavior, do not participate in it. Okay? आपके पास किसी भी व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, हर जगह आपके पास एक ऑप्शन होता है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। ठीक, अगर कोई आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है, आपको गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहा है, या फिर आपको इंटरनेट पे बुली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है,
आप सिंपल जाना, उसकी चैट को रिपोर्ट फोन कर दो। करता है वो कचरा सा। वो चैट आपकी जो अपने अभी ये सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इंस्टाग्राम और ये वेबसाइट, जितने भी एप्स होते हैं, इनके पास एक डेडिकेटेड टीम होती है। वो फीडबैक उनके पास जाता है, वो हिस्ट्री एनालाइज करते हैं, एंड व्हेन दे फाइंड दैट यू आर ट्रू, दैट समवन इज abusing you online, so they will block him, they will suspend their account, or they can delete their मतलब account permanently. ओके, तो रिपोर्ट बैड बिहेवियर, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट। अगर कोई आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है या कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको उसके साथ सेम नहीं करना है। सिंपली रिपोर्ट इट एंड ब्लॉक इट। वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा हसल और एक्स्ट्रा fighting them that I am right, they will be saying no I am right. Just report them. अंडरस्टैंडिंग कॉपीराइट। अभी किसी ने कोई यूट्यूब चलाता है, तो आपने उस पर कॉपीराइट का वर्ड सुना है? किसी ने, कोई बताएगा? योर वीडियो हैज बीन कॉपीराइटेड। हाँ, राघव। हमसे कॉपीराइट मतलब क्या होगा, बेसिकली एक वीडियो को हम अगर एक वीडियो को फिर से पोस्ट कर देंगे और हम बोलेंगे कि आपने बनाई हम तो फिर हम लोग बेसिकली ले रहे हैं उस बंदे का कि हमने वीडियो बनाई है और फिर उस बंदे का तो एक ऐसा मतलब हम उसका पहले छीन रहे हैं, ये होता है कॉपीराइट। वेरी गुड राघव। राघव ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। कॉपीराइट बेसिकली यही होता है कि अगर किसी ने अपना वर्क किया है और उस वर्क को आप अपना वर्क बना के प्रमोट कर रहे हो, तो वहां पे आपको कॉपीराइट लग जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यूट्यूब पे मिलता है। आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो को डाउनलोड करोगे और अगर उसे आप अपने यूट्यूब के चैनल से पोस्ट करते हो ना, तो यूट्यूब आपके ऊपर कॉपीराइट लगा देता है। कॉपीराइट एक इलीगल तरीका होता है और क्या कहते हैं, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो इसमें ना कॉपीराइट के अंदर क्या क्या चीज आ सकती हैं? सॉन्ग्स हो गए, स्टोरीज होगी, वीडियो होगी, पिक्चर्स होगी, सॉफ्टवेयर, मतलब जो कोई भी क्रिएटर ने कुछ भी वर्क क्रिएट किया, इवन ड्राइंग, अगर उसने ड्राइंग भी बनाई है ना, या किसी फोटोग्राफर ने पिक्चर भी क्लिक की है, तो वो उसका खुद का वर्क है। वो आप उसके खुद के वर्क को उसकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो कॉपीराइट एक लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर के वर्क को। कल को आप अगर एक यूट्यूबर बन जाते हो, आप अपने व्लॉग्स डालते हो या फिर आप अपना कोई वर्क डालते हो, सॉन्ग बना के डालते हो या कोई ड्राइंग बना के डाल रहे हो या कोई भी वीडियो डाल रहे हो आप, है ना, या कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वो आपका खुद का वर्क है। कल को कोई आपका वर्क यूज करके ये ना बोलने लगे कि ये मैंने बनाया है। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक कॉपीराइट का लॉ लाया गया था। इसके अंदर क्रिएटर्स के वर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके पायरेसी से बचने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं लोग कि कुछ लोग इसको अपना बताने लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे राघव ने बताया कि हम उसको सेम चीज को पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कंटेंट होते हैं जो कॉपीराइट फ्री होते हैं, तो आपको ना इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे कि क्या वो कॉपीराइट फ्री है, यानी कि वो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, आप उसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, तो वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा। अगर आप किसी का वर्क एज इट इज पेस्ट कर रहे हो, तो वो कॉपीराइट के अंडर में आएगा। अब जैसे कि एक ना यूट्यूब पे आपने देखा होगा, रिएक्शन वीडियोस आते हैं। रिएक्शन वीडियो में क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड में किसी की वीडियो चला रहे होते हैं, लेकिन उन पर कॉपीराइट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो उस वीडियो पर कमेंट डाल रहे हैं, वो उस वीडियो का रिव्यू बना रहे हैं। उसके बॉटम में एक छोटा सा बंदा आपको एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देता है कि ठीक है, ये यहाँ से आया, ये अभी इसकी स्टोरी ऐसे जा रही है, ये, तो वो उसको ना उसमें कुछ ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, तो वो फिर उस क्रिएटर का खुद का ओरिजिनल वर्क नहीं रहा, इसमें किसी ने ऐड ऑन कर दिया। तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन उस क्रिएटर के किसी भी वर्क को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको करना है, उसकी परमिशन लेनी होगी, परमिशन नहीं लोगे तो वो इलीगल है और अनफेयर है, और वो पनिशेबल भी होता है। तो अब अपन, हाँ राघव। हमसे 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 फिर मतलब डालना है वीडियो, हमको मतलब अगर तो सेम वीडियो डालना है उसका, उनको तो हमको लेना पड़ता है एक उसकी, हमको लेना पड़ता है एक उसके लाइसेंस और कॉपीराइट के लिए। अगर वो अलाउ करे तो डाल सकते राघव, आपकी ना वॉइस मेरे को ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बोलोगे एक बार? हैं। सर मैं कह रहा था कि सर हमको हमको वो अगर सेम वीडियो डालना है वापस से चैनल में, तो फिर हमको लेना पड़ेगा एक उससे लाइसेंस और कॉपीराइट करके। हम्म। अगर वो अलाउ करेगा तो ही हम डाल सकते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है।
आप पहले परमिशन लोगे तो उसके वर्क को आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप उसको सोच रहे हो कि मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्यों बहुत सारे ऐप आते हैं जो डाउनलोडेबल लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप एज इट इज पेस्ट कर रहे हो ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। या फिर आपको अगर किसी का आप ले रहे हो, जैसे कि राघव ने बताया लाइसेंस ले रहे हैं, आपको ना उसके डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करना पड़ता है कि ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व टू दिस दिस पर्सन या फिर दिस दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, आपको पब्लिक को भी बतानी होती है कि ये जो जिसके जितने भी कॉपीराइट्स हैं, जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसके कॉपीराइट्स उसके हैं और मैंने उससे परमिशन लेके ये वीडियो बनाई है। ओके, तो ये सब चीजें फॉलो करोगे तो वो लीगल हो जाता है। अगर आप चुपके से सोचते हो कि मैं कर लेता हूँ, आपने एक यूट्यूबर थे अमित बड़ाना, उन्होंने भी सेम किया था। जब उन्होंने शुरू में यूट्यूब चैनल बनाया तो क्या किया था, दूसरों के वीडियोस लाए, उसमें कट कॉपी पेस्ट करके थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने चैनल ग्रो किया। लेकिन फिर बाद में वो पकड़ में आ गया, फिर उनका चैनल बंद हो गया। अब वो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि पहले मेरे पे कॉपीराइट लगे थे, तब उन्होंने खुद का कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स कंटेंट, है ना, तभी आप क्रिएटर कहलाओगे। सो रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट, ऑलवेज गिव क्रेडिट इफ यू यूज समवन एल्स वर्क, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो आपको बताना होता है कि सारे कॉपीराइट्स जो हैं ये रिजर्व्ड हैं इस पर्सन के या इस यूट्यूब चैनल के, मैं सिर्फ उनका वर्क यूज करके उस पर रिव्यू पास कर रहा हूँ। लुक फॉर कॉपीराइट फ्री कंटेंट, ये भी मैंने बताया था कि आपको वो कंटेंट देखना है जो कॉपीराइट फ्री हो या फिर क्रिएटिव कॉमन मटेरियल्स हो। परमिशन पूछनी, जैसे ये राघव ने बताया था, एक लाइसेंस, लाइसेंस बेसिकली यही हो गया कि आप सामने वाले की परमिशन ले रहे हो, उसने आपको अलाउ कर दिया, ओके यू कैन गो फॉर इट, यू कैन यूज इट। तो ये हो गया कि आस्क फॉर परमिशन व्हेन नीडेड, है ना। डू नॉट कॉपी एंड शेयर बुक्स, म्यूजिक, मूवीज और गेम्स विदाउट द क्रिएटर्स परमिशन। बिना परमिशन के आपको ये चीज करनी ही नहीं है। पहले परमिशन लेनी है, फिर आपके अगर उसको यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर लेना। अब प्लेगरिज्म, कोई बता सकता है, किसी ने वर्ड सुनी होगी प्लेगरिज्म? अभी तक नहीं सुना? तो आपके टीचर ने ना आपको असाइनमेंट दिया है कि ठीक है कि जाओ और एक ऐसे लिख के लाओ कि समर वेकेशन के ऊपर। तो कुछ लोगों ने तो खुद लिखा, बाकी ने क्या किया, नेट पर गए, गूगल किया कि राइट ऐसे इन 550 वर्ड्स ऑन समर वेकेशन। गूगल ने आपको एक कंटेंट दे दिया। तो या फिर कोई आपको टीचर ने पोयम लिखने के लिए दिया, आप गूगल पे गए, आपने उस टॉपिक को डाला, उस टॉपिक पे पोयम आ गई। अब आपने क्या करा ना, सेम एज इट इज कॉपी कर दिया अपनी असाइनमेंट बुक में। आप स्कूल गए, टीचर को दिया, टीचर ने फिर वहां पे बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट किया है तुमने, ठीक है, ये तुमने खुद नहीं लिखा है। अब उस चीज को जैसे टीचर ने वो पकड़ा, और आपका ये जो कॉपी करने का प्रोसेस था ये प्लेगरिज्म में आ जाता है कि आप किसी के वर्क को कॉपी कर रहे हो। किसी ने गूगल पे डाला हुआ है, अपनी पोयम लिख के डाली है या अपना समर वेकेशन का ऐसे लिख के डाला है, आपने क्या किया, एज इट इज उसको कॉपी कर दिया कि ठीक है कौन लिखेगा, 5 मिनट में कॉपी हो जाएगा। आप टीचर के पास गए, लेकिन टीचर को पता था कि प्लेगरिज्म क्या होता है, उन्होंने पकड़ लिया आपको। तो प्लेगरिज्म यही हो गया कि आप किसी के वर्क को अगर कॉपी कर रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ ये मैं करके ला रहा हूँ, तो वो प्लेगरिज्म के अंदर आ जाता है। बेसिकली ये चीटिंग हो गई कि आप बैठे हो पीछे, आपको आंसर नहीं आता, आपके आगे वाले बंदे ने उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, आपने अपने दोस्त से बोला भाई मेरे को इसका आंसर बता दो, उसने बताया, आपने सेम आंसर लिख दिया, टीचर ने कॉपी चेक की, टीचर जब कॉपी चेक कर रहा था तो उसने देखा कि अरे इसका भी वर्ड टू वर्ड सेम है और इसके बाद वाले का भी वर्ड टू वर्ड सेम, यानी कि दोनों ने चीटिंग की है। टीचर ने आपको देखा नहीं था चीटिंग करते हुए, लेकिन आपके वर्क से पता लगा लिया कि आप दोनों ने चीटिंग की है। क्यों? आपने सामने वाले के वर्क को कॉपी किया था, वो प्लेगरिज्म के उसमें आ गया फिर कैटेगरी में। और ये एक डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया था, विदाउट क्रेडिट, नहीं तो लास्ट में लिखना होता है कि मैंने इस सोर्स का यूज करके ये ऐसे लिखा है। सबमिटिंग समवन एज प्रोजेक्ट एज योर ओन, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपने दूसरे से बोला भाई तूने असाइनमेंट कर लिया, हाँ हो गया, लाओ मेरे को भी सेंड कर दे, मैं भी सेम लिख देता हूँ, तो वो प्लेगरिज्म के उसमें आ गया। यूजिंग आइडियाज विदाउट मेंशनिंग द सोर्स, ये भी प्लेगरिज्म में आता है। तो आप ना अभी, मेरे को नहीं पता आपने फाइल वाइल बनाई है कि नहीं, एक बिब्लियोग्राफी होता है वर्ड, है ना। जब आप कभी फाइल बनाओगे तो लास्ट में लिखना होता है
तो उसमें आप ना सोर्सेज मेंशन करते हो कि कहाँ से आपने क्या क्या उठाया है, ये आपने किस चीज की मदद ली है, किस वेबसाइट की रेफरेंस ली है। तो वो सब चीजें मेंशन करनी जरूरी हो जाती हैं सोर्स में, तो फिर वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आप वहाँ एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैंने इसकी हेल्प ली है, मैंने गूगल की हेल्प ली है। तो बताने से चीटिंग नहीं रहती, फिर वो आप चोरी छुपे काम कर रहे हो तो वो चीटिंग हो जाती है। अवॉइड कैसे करना है प्लेगरिज्म को? एज इट इज वर्क कॉपी नहीं करना है। आप जैसे कि अपना वर्क कॉपी करते हो एज इट इज, तो वो क्या हो गया कि आपने गूगल पे गए, गूगल पे आपने ऐसे लिया समर वेकेशन का, एज इट इज कॉपी कर दिया, उसमें लिखा था कि मैं नैनीताल गया था घूमने, आपने नैनीताल पे पूरा ऐसे लिख दिया, ठीक है? तो वो तो प्लेगरिज्म हो गया। अब क्या हुआ, आप नैनीताल नहीं गए थे घूमने, आप नैनीताल की जगह कहीं और गए थे, जैसे कि आप ऋषिकेश गए थे। तो अब क्या होगा, आपने ना उस आपने रेफरेंस ली गूगल के उस एसे से, अब आपने उसके नैनीताल को हटा के अपने ऋषिकेश के एक्सपीरियंस को डाल दिया, तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको आइडिया मिल गया कि हाँ मेरे को क्या क्या लिखना है इससे के अंदर, लेकिन लिख आप अपना कंटेंट रहे हो, तो अपने वर्ड्स को यूज करना है। मेंशन द सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर यूज कर भी रहे हो कोई वेबसाइट वगैरह, तो उसमें सोर्स मेंशन कर दो कि ठीक है मैंने इधर से यूज किया है। पैराफ्रेज, उसको यानी कि रीराइट करना है, या फिर रेफरेंस लेनी है प्रॉपरली, जो मैंने बताया कि आप खुद के एक्सपीरियंस डालो, बजाय उसके नैनीताल के आप अपने ऋषिकेश का एक्सपीरियंस डालो, लेकिन उसमें ये बता दो कि हाँ ठीक है मैंने यहाँ यहाँ से इस चीज को यूज किया है। Rajat, Raghav हाँ and Shikhar have their hands raised. Yes, Raghav, go ahead. राघव। हाँ सर, यस सर। आपने अपनी वीडियो क्यों रोटेट कर ली है राघव? अरे सर ठीक है तो सर वीडियो रोटेट। आप अभी एलियन लग रहे हो जो दीवार पे चलते हैं। अब ठीक है सर। अभी भी एलियन ही लग रहे हो। दूसरी दीवार पे आ गए हो। ये क्या है? हाँ पूछो, यू हैव अ क्वेश्चन राघव? नो सर। ओके। सर आंसर देने के लिए शिखर आप शिखर आपने हैंड रेस किया था, यू हैव अ क्वेश्चन? यस शिखर, यू कैन अनम्यूट एंड हाँ बोलो शिखर। शिखर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम कम करो जरा। यस। मेरे को भी आवाज नहीं आ रही है सर। म्यूट है क्या? शिखर आप म्यूट हो शायद। या रजत, यू कैन गो अहेड। ओके। सो अब ना स्मार्ट प्रैक्टिसेस के आते हैं, ऊपर आते हैं कि क्या स्मार्ट प्राइवेसी प्रैक्टिसेस होती है। मैंने कल आपको बताया था कि आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हैकर क्या करता है, आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ठीक है? वही आज के वे, अगर आप इंटरनेट की दुनिया में देखोगे ना, दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डेटा और एक आपकी प्राइवेसी। डेटा मिलेगा कहाँ, जब आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी। प्राइवेसी ब्रीच होने का मतलब आपका यूजर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, या फिर आपकी फोटोग्राफ्स, ठीक है, या फिर आपके एड्रेस, ये सब जो है आपके प्राइवेसी के अंदर आता है। ये राइट टू प्राइवेसी होता है, आपका खुद का अधिकार है, किसी को इनका जानने का अधिकार नहीं है, ये आपके खुद का पर्सनल है। लेकिन जब ये ब्रीच होता है ना, ये ब्रीच होके एक डेटा बन जाता है, जो डेटा हैकर के पास चला जाता है। हैकर उस डेटा को बेचता है। हैकर पैसे कहां से कमा रहा है, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करके आपका डेटा चुरा के वो कंपनीज को बेच देता है। कंपनीज क्या करती हैं, आपको फिर बाद में ईमेल के थ्रू या किसी के थ्रू स्पैम भेजना शुरू कर देती हैं, ऐड भेजना शुरू कर देती हैं। अब बहुत से लोग होंगे क्या कहते हैं, विंजो पे नहीं बनाया होगा अकाउंट, लेकिन उन्हें फिर भी विंजो गेम्स के मैसेज आ रहे हैं।
कहाँ से आ रहे हैं, यानी आपका कहीं ना कहीं नंबर जो है, फोन नंबर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, ईमेल आईडी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम, मैंने कल आपको बताया था, अ, अनिका को बताया था शायद मैंने, है ना। तो उसमें क्या था कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है, अनिका @123 4 नहीं लिखना है। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इनके कॉम्बिनेशन से हमेशा हमेशा पासवर्ड बनाना। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिकल यानी अल्फा न्यूमेरिक जो हो जाते हैं, और स्पेशल लेटर जो होते हैं, जैसे कि हैशटैग हो गया, ठीक है, परसेंट वाला साइन हो गया, या एम% वाला साइन हो गया। इन चीजों को यूज करके पासवर्ड बनाओगे ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाओ, कभी भी इजी टू प्रिडिक्ट पासवर्ड नहीं बनाना है। कल भी बताया था, किसी को अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है। पासवर्ड शेयर करोगे तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। चाहे आपका फ्रेंड हो, किसी को नहीं बताना कि आपका पासवर्ड क्या है, ये आपकी प्राइवेसी के अंदर आ जाता है। कीप योर प्रोफाइल प्राइवेट ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे दो ऑप्शन होते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी है या प्राइवेट करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, पब्लिक कर देते हैं, फिर वो इन्फ्लुएंसर बनने के उसमें चले जाते हैं कि मैं तो इन्फ्लुएंसर बनता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पता क्या हो रहा है, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस, आपकी लोकेशन, आप किस किस लोकेशन पर हो, हर चीज ब्रीच हो रही है। अब वो ब्रीच होके कहाँ जा रही है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी के पास जा रही है, जो उसको यूज करेगा आपको क्या कहते हैं, स्पैम करने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो हर चीज को प्राइवेट रखो, जितना आप अपने आप को प्राइवेट रखोगे ना, उतना आप आगे के लिए सिक्योर रहोगे और सेफ रहोगे। डोंट रिवील टू मच इन चैट्स, गेम्स और फोरम्स। कोई पबजी खेल रहा है, पबजी खेलते खेलते आप मिल गए और आप बोलने लगे कि ठीक है भाई मैं यहाँ से हूँ, ये ठीक है, अपनी प्राइवेट चीजें नहीं बतानी है कभी, अपनी लोकेशन नहीं बतानी, भाई मैं दिल्ली से हूँ। कभी नहीं बताना कि भाई मैं लखनऊ से हूँ या फिर मैं किधर और से हूँ, ठीक है। अपनी लोकेशन शेयर नहीं करनी है। अपने बारे में नहीं बताना है आप क्या करते हो। कभी ये नहीं बताना आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। कोई आपसे पूछ रहा है कि मेरे को अपना पासवर्ड बता दो, मैं आपके अकाउंट में अभी पैसे डाल रहा हूँ, कुछ नहीं बताना है। अननोन व्यक्ति, कोई भी अननोन पर्सन है, कोई मतलब नहीं रखना। मम्मी पापा मना करते हैं ना कि बेटा रास्ते में जा रहे हो, कोई अननोन आदमी मिले या आपको चॉकलेट दे या टॉफी दे तो नहीं लेनी है। सेम सिचुएशन है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, चैट कर रहे हो, गेम खेल रहे हो या किसी फोरम में हो, किसी से ज्यादा अपनी पर्सनल डिटेल्स रिवील नहीं करनी है, नहीं तो वो आपके खिलाफ यूज हो सकती हैं। अपने पेरेंट्स और टीचर्स से हमेशा पूछना है अगर किसी चीज के लिए आप अनश्योर हो, ठीक है, कि ये सही है या गलत है। क्यों, उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस कर रखी है एंड दे हैव मच मोर नॉलेज देन यू, ओके। तो आपको अगर कहीं भी आप फंस रहे हो ना जिंदगी में, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपने पेरेंट्स से कभी नहीं छिपानी है। जाओ, बोल दो मेरे से ये गलती हो गई है और ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे परेशानी में फंसा हुआ हूँ। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। वो बात अलग है आप सही हो या गलत हो, लेकिन अपने पेरेंट्स से बताओगे ना हर चीज, तो आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो हमेशा अपने बड़ों से चीजें पूछनी है, अगर किसी भी चीज के लिए अनश्योर हो, शेयर करने के लिए ऑनलाइन। जैसे कि कोई आपसे पासवर्ड मांग रहा है कि मैं आपको अभी कैशबैक दे रहा हूँ आपको इतने रुपीस का, या फिर मैं आपको इस वाले गेम के इस कैरेक्टर की स्किन सेंड कर दूंगा अगर आप मेरे को ये चीज करके दोगे। इन चीजों में नहीं फंसना है, फ्रॉड होता है। अब ये जो की टेक अवेज हैं जो अपन ने अभी आज देखे, इनके मतलब क्या क्या आपने सीखा है, बेसिकली ये वो चीजें हैं। पहला, ऑलवेज शो रिस्पेक्ट ऑनलाइन। जैसा आप चाहते हो आपको लोग ट्रीट करें, आपको दूसरों को भी उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपका रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, तो आपको भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा, अंडरस्टैंड एंड फॉलो कॉपीराइट लॉज। इंटरनेट पर किसी के कंटेंट को अपना कंटेंट बनाकर प्रमोट नहीं करना है। कॉपीराइट लॉज को फॉलो करना है। और जितनी आपको इसके बारे में अवेयरनेस होगी ना, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। कल को आपके कंटेंट को कोई कॉपी करता है तो आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो। आपके पास राइट है कोड जाने का, आप उसको कॉपीराइट लगाकर उसके कंटेंट को हटवा सकते हो, अगर वो खुद का आपका कंटेंट है। कभी भी प्लेगराइज नहीं करना है कंटेंट, हमेशा अपना वर्क बनाओ। और अगर तुम किसी का वर्क यूज कर भी रहे हो, तो उसकी सोर्स को मेंशन करो, या फिर उसमें अपने खुद के वर्ड्स डाल दो, उसको रिफ्रेश कर दो। ठीक है, कुछ कंटेंट होता है जो आपका खुद को नहीं मिल पाता है, लेकिन एज इट इज
पहले वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक कॉपी नहीं करना है, उसमें चेंजेस करने हैं, तब वो प्लेगराइज नहीं होगा। अगर क्या कहते हैं आप उसको चेंज नहीं करोगे, एज इट इज लग दोगे, तो वो प्लेगरिज्म के अंडर में आ जाएगा। प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड स्टे सेफ, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइवेसी आपकी अपने हाथ में है। आप जितना रिवील करोगे सोशल मीडिया पर, आप अपने आप को जितना इंटरनेट के ऊपर रिवील करोगे, पब्लिकली नॉट प्राइवेटली, पब्लिकली जितना रिवील करोगे, आपकी प्राइवेसी ब्रीच होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जहां आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगी, आप सेफ नहीं रहोगे, ठीक है। इवन देयर आर केसेस कि लोग आपके सोशल मीडिया पोस्ट की लोकेशन से पता कर लेते हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, आपका घर का एड्रेस क्या है, आप कौन से स्कूल जा रहे हो। तो वो बंदा आपको हार्म पहुंचा सकता है उसी लोकेशन पर आकर, अगर उसकी आपसे कोई डिबेट हुई है तो, या कोई इधर कमेंट वमेंट में आपने इधर कोई कमेंट पास किया, उसने कोई पास किया, तो यू कैन नेवर नो दैट व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग इन देयर माइंड, है ना। तो वो इससे अच्छा है कि हम उस चीज में पढ़ते ही नहीं है, हम अपने आप को प्राइवेट रखेंगे, अपनी डेटा को प्राइवेट रखेंगे, और इन सब चीजों से बच के रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो हम आते हैं सैंपल क्वेश्चंस के ऊपर आज के। ट्रू फॉल्स, इट्स ओके टू कॉपी अ सॉन्ग फ्रॉम इंटरनेट इफ यू डोंट सेल इट। सर कौन बताएगा? सर फॉल्स। Sir, false. सर फॉल्स। चलो, सर 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 आप Sir, can I tell? हाँ कैन आई टेल? Sir, can I tell? वीडियो ऑन करके पूछो। Sir, can I tell? सर कैन आई टेल? अरे बोलो कोई। सर सेकंड क्वेश्चन का बताना है ना? Sir, your voice is not coming. सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir, your voice is not clear. एक सेकंड, वी आई आ रही? Yes, sir. यस सर। तो मैं पहले क्वेश्चन का पूछ रहा था कि जैसे सबने फॉल्स बताया, लेकिन हम तो उसको I wasn't not. Raghav, can you mute yourself? यस सर। Can you mute your mic? तो ये फॉल्स इसलिए हुआ, क्यों हमने क्या किया था, कॉपीराइट का मतलब ही ये है कि हमको किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं करना है, भले ही हम उसको सेल करें या ना करें। अगर हम उसके कंटेंट को कॉपी करके या डाउनलोड करके अपने पास रख रहे हैं तो वो इलीगल है। अगर आप कोई इंटरनेट से कोई मूवी इलीगली डाउनलोड कर रहे हो, इलीगल वेबसाइट से, जैसे कि पायरेट पे हो गई या और तरह की वेबसाइट हो गई, अगर आप इन इन वेबसाइट से किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करते हो तो वो इलीगल होता है, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। इसलिए कॉपीराइट का मतलब ये नहीं कि आप उसको सेल करोगे तभी कॉपीराइट लगेगा, नहीं। अगर आप किसी का कंटेंट चुरा भी रहे हो, अपने पास रख रहे हो, तो वो एक इलीगल वे हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू इफ समवन इज बीइंग मीन ऑनलाइन? अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन, Sir, first we should not be provoked. Sir, we should not react, and we should stay calm, sir, and we should report and block him. आपने भी हैंड रेस किया है। देव,
Yes, sir. अनिका, हाँ देव, हैंड रेज किया था आपने सेकंड No, क्वेश्चन के आंसर पे? आपका हैंड रेज दिखा रहा था। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम वन पीस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन यू शुड कीप प्राइवेट। देवांश, Sir, one piece of personal information that we should keep private is our bank account ID. वेरी गुड आंसर। एनीवन एल्स? सर हाँ सर द पासवर्ड्स। हाँ, पासवर्ड, दे आर वेरी करेक्ट आंसर। एनीवन एल्स? There are important information. विच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? Password. sir. Bank account details and password. हाँ, एंड सर Sir, can I- एड्रेस एड्रेस वेरी Sir, can I? Photos. yes, photos, yes, they also come under privacy na, photos, Sir, address, can I? email. Ritu, yes, Sir, Gmail ID. हाँ, Gmail ID, your basically your email ID है ना। तो इन सब चीजों को अपन को प्राइवेट रखना है, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंडर में आती हैं। सो असाइनमेंट पे पढ़ने से पहले किसी को कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर से रिलेटेड, कोई भी डाउट, जरूरी नहीं है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है या इधर उधर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप पूछ सकते हो, ठीक है? सर सर मुझे एक चीज बतानी है सर। हाँ बताओ। सर कि तो आजकल वो स्कैमर्स होते हैं ना, तो वो हमको भेजते हैं स्पेसिफिक लिंक्स, और वो बोलते हैं कि आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको फ्री मनी मिलेगा। तो फिर अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो फिर वो हमारी सारी चीजें हैक कर लेते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं मतलब, और फिर हमको ऑनलाइन साइबर बुली करते हैं। हाँ, तो ये कल ना मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अननोन सोर्स से कोई भी लिंक आ रहा है आपको ओपन नहीं करना है। और एक साथ उसके साथ ना एक मैंने सेंटेंस बोला था, कोई भी हैकर आपको तब तक हैक नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे, Yes, है ना। sir. तो जैसे ही आपने उसके लिंक पे क्लिक किया ना, बैकग्राउंड में परमिशन चली जाती है अलाउ अलाउ की। हैकर का मेन मोटिव होता है कि आपको ऐसे लालच देगा ना, आपको बोलेगा कि भाई ये टॉफी मिलेगी, भाई ये गेम की स्किन मिल जाएगी, इतने तुमको कैशबैक मिल जाएगा, आपको वो इतना वो कर देगा, आप मतलब कंफ्यूज कर देगा। आप बोलोगे यार क्लिक करके देख ही लूं क्या। द मोमेंट यू क्लिक दैट लिंक ना, हैकर आपके सिस्टम में घुस जाता है। वो सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करवाने के लिए आपसे दुनिया भर की चीज आपको बताएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसको फिर आपसे कोई मतलब नहीं, वो आपके सिस्टम में आ चुका है, फिर आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। फिर वो आता आता आपके बुलाने के बाद है, लेकिन जाएगा वो अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से नहीं जाएगा। ओके। अरे ये बहुत सारी चीज होती हैं। कभी भी पब्लिक वाईफाई क्यों नहीं यूज करना चाहिए पता है? पब्लिक ये थोड़ा हाई लेवल पे हो जाता है। हैकर क्या करता है ना, एक अपना खुद का फॉल्स नेटवर्क बना देता है, आपका ट्रैफिक उसके नेटवर्क से होके फिर वाईफाई की तरफ जाएगा, यानी कि हैकर बीच में बैठ गया आपके और वाईफाई के। अब आप अपने सिस्टम पे जो भी पासवर्ड डालोगे वाईफाई को एक्सेस करने के लिए, वो हैकर के नेटवर्क पे गया, हैकर ने उसको नोट डाउन कर लिया, फिर वो वाईफाई के पास गया, आपको पता भी नहीं कि आपका पासवर्ड हैकर के पास चला गया। तो इसलिए हम पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करते हैं। देवांश, आप और किसी को कोई क्वेश्चन? राघव सर मैं आई सर अब सर मुझे एक और चीज पसंद है कि सर तो हम हैकर लोग वहां से भी हैक कर लेते हैं, ब्लूटूथ से भी, मतलब बेसिकली एक टाइप से। इंटरनेट के थ्रू होता है। ब्लूटूथ से बेसिकली उसको एक हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए होंगी, पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइसेस, तब वो आपके सिस्टम में घुस पाएगा। लेकिन क्योंकि ब्लूटूथ एक ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है, अभी अपन वायरलेस नेट, ब्लूटूथ की ना एक रेंज होती है कि 5 मिनट, 5 मीटर, 10 मीटर, इससे ज्यादा हैकर को आपके उतने पास होना पड़ेगा।
आपको हैक कर पाएगा। वो हैकर कभी भी रिस्क नहीं लेगा आपके पास आने का। तो ब्लूटूथ से इतना वो नहीं रहता है। लेकिन अगर वहाँ वाईफाई आप यूज कर रहे हो ना, या फिर किसी की करप्टेड फाइल्स के थ्रू आप किसी करप्टेड फाइल्स ओपन कर रहे हो, तो उन चीजों से खतरा बढ़ जाता है। रितु, सर आई हैव टू, मेरे को एक चीज बतानी है। हाँ बोलो। सर एयरटेल ने अभी पिछले साल ही एक स्कीम लॉन्च करी थी कि अगर दी कोई भी स्पैम कॉल्स आएगा तो एयरटेल आपको वो बताएगा कि कर करके वार्निंग स्पैम कॉल ऐसे करके। हम्म। सर हाँ तो आज ही आया वो, था। हाँ वो अब चल रहा है। अभी पता है क्या हुआ, आपके ना ओटीपी आता है। ओटीपी आपके पास कैसे आता है बैंक का? तो एयरटेल जियो ये बीच में बैठे रहते हैं। आप कुछ भी करोगे, ओटीपी इनके नेटवर्क के थ्रू आता है, इनके सेल टावर्स के थ्रू आता है। तो इसमें क्या करते थे ना हैकर, जब ओटीपी आपके पास आता था, तो उसके बाद क्या होता था कि हैकर आपकी ओटीपी ले लेते थे और अपने डाल देते थे और आपके बैंक अकाउंट में घुस जाते थे। अब गवर्नमेंट ने इन सबको कंपलसरी किया है कि आप ट्रैक कीजिए ओटीपी की लोकेशन, जो डिजायर्ड लोकेशन है, ओटीपी किधर जा रहा है और डल किधर से रहा है। ठीक है, हैकर अपनी लोकेशन तो चेंज नहीं कर सकता ना। अगर आप दिल्ली में बैठे हो, ओटीपी दिल्ली में आया, हैकर चंडीगढ़ में बैठा है, तो वो तो चंडीगढ़ से ही ओटीपी डालेगा, भले ही उसके फोन के पास आपके फोन का एक्सेस है। तो जब आपका जो जो ये ट्रैफिक होता है ना, नेटवर्क ट्रैफिक, जब ये डाइवर्ट होता है डिजायर्ड लोकेशन से अनडिजायर्ड लोकेशन पे जाएगा, यानी कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिखाएगा, तो सेल कंपनीज जो होती हैं, यानी कि एयरटेल और जियो, इनको पता लग जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो वो उसको सस्पिशन में डाल देती हैं। जब तक यूजर कंफर्म नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये एक सिक्योरिटी मेजर है जो गवर्नमेंट ने लिया है कि ओटीपी के साथ, मैंने कल आपको बताया था ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला, उससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 2 फैक्टर लगवा दिया इनसे कि सेल कंपनीज आप भी ट्रैक कीजिए कि ओटीपी उसी यूजर से आ रहा है जिस यूजर को आपने भेजा था, ये दूसरे यूजर से आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे सस्पिशन रेज हो रहा है, और फिर उसको वो ट्रांजेक्शन वहां पे नहीं होने देना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, फ्रॉड और स्कैमर्स जो है ना, ये बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो इसलिए वो चीजें लॉन्च हो रही हैं आपकी सेफ्टी के लिए। राघव, आपने हैंड रेज किया है? नो सर, नो डाउट। ओके ओके। तो और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं एक चीज बताता हूँ। आपको पता है पहला कंप्यूटर कितना बड़ा था, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था? कोई बताएगा? हाँ, ऐसे नहीं देवांश, साइज सर बताओ कितना बड़ा था। हाँ, अंदाजा लगा दो। अच्छा, एक टेबल के बराबर होगा ना? सर वो सर एक रूम जितना था। हाँ, एक सर एक रूम टेबल जितना से बड़ा था। थोड़ा बहुत छोटा होगा। नहीं, सर टेबल से छोटा नहीं, सर एक रूम सर जितना बड़ा था। सर हाँ सर दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट के आसपास। हाँ, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मैंने जो देखा था ना, इतना बड़ा था। सर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अप्रोक्सीमेट पता है। ऐसी बात है। तो ये एक रूम जितना बड़ा होता है, टेबल इतना सर था। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आप अपना, राघव म्यूट कर। हाँ, तो पहले ना कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि वो एक रूम के बराबर आता था, लेकिन उस टाइम उसको हैक करना उतना ही आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, नए कॉन्सेप्ट्स आए, चीजें कॉम्पैक्ट होती चली गई। आज आप ना, कंप्यूटर इतना हो गया है, आप उसको या तो एक टैबलेट के फॉर्म में या अपने लैपटॉप के फॉर्म में हाथ में लेके घूम सकते हो। इवन योर स्मार्टफोन जो है, इसकी इतनी कैपेबिलिटीज हैं। जो नासा ने अपोलो मिशन भेजा था ना 1975 में, 1970 60 के आसपास जो भी था, तो नासा नासा के जो अपोलो कंप्यूटर्स थे ना, अपोलो मिशन में जो कंप्यूटर्स गए थे, उनकी कैपेबिलिटी आपके स्मार्टफोन से बहुत कम थी। स्मार्टफोन के बराबर भी नहीं थी उनकी कैपेबिलिटीज, और वो मून पे पहुंच गए थे। सोचो। तो आज आपके पास इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, इतनी पावरफुल कैपेबिलिटी है। तो जब चीजें पावरफुल होती है ना, तो उनके फायदे भी उतने ही बढ़ते हैं और नुकसान भी उतने ही बढ़ जाते हैं। सेम चीज ये हुई है यहाँ पे कि पहले सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं था, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, पावर बढ़ी है, परफॉर्मेंस बढ़ी है, नए कॉन्सेप्ट आए हैं, तो सिक्योरिटी ब्रीच करने के भी उतने ही कॉन्सेप्ट बढ़ गए हैं। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो हर जगह काम आता है। आप टेक्नोलॉजी इवॉल्व करोगे, सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ जाएंगे।
आज ये थ्रेट है, कल को नया थ्रेट आ जाएगा। बट आपकी अवेयरनेस के थ्रू, और क्या कहते हैं, आप कितना अवेयर हो इस चीज से लेके, साइबर सिक्योरिटी से लेके, आप उतना ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। So to keep yourself safe, it is very necessary to be aware of cyber security and the potential threat that you can face in your daily life while using internet. Okay. अब किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नितिन सर। Yeah, thank you. So the assignment for module 2 is you have to write a short story. It can be 5-6 lines, or if you want it to be a bigger, it can be a bigger. But it has to be about a character who learns to be kind and respectful online. ठीक है, और ये URL दिया हुआ है, इस URL पे जाके आपने अपने असाइनमेंट को अपलोड करना है। एज आई टोल्ड लास्ट टाइम, कल की क्लास में बताया था आपको डिटेल्स फिल करने हैं, बट दिस टाइम आपके डिटेल्स वहां पे सेव्ड होंगे फॉर्म में। सो यू हैव टू गो एंड अपलोड योर मॉड्यूल 2 असाइनमेंट एंड देन क्लोज द फॉर्म। आप फॉर्म सबमिट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक 10 मॉड्यूल्स के असाइनमेंट्स आप अपलोड नहीं कर देते हो। तो go and upload your module 2 assignment and then you can close the window. Next time जब आप login करोगे, you will be able to find your module 1 assignment and module 2 assignments uploaded there. फिर आपको module 3 का assignment upload करना होगा। ठीक है, is the assignment clear to you? प्लेगरिज्म का ध्यान रखना, अपना ओरिजिनल स्टोरी बनाओ और उस कैरेक्टर के बारे में बताओ जिसने लर्न किया कि कैसे हमें रिस्पेक्टफुल और काइंड होना है ऑनलाइन। ठीक है, ये स्टोरी बना के आप अपलोड कर दो। ये आपका आज का असाइनमेंट है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स यू अपलोड योर असाइनमेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट सैटरडे को विद अ न्यू टॉपिक। ओके, इन द मीन टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस डाल सकते हो। रजत इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप. He can answer the queries. General queries I can answer, or if there is a need you can also drop in an email and then we can respond over the emails as well. ठीक है, all right, thank you. Rajat, any closing comments? Just stay safe and smart. Okay. Remember to protect yourself from breach, any kind of breach. Privacy is your top priority. Okay. Never let anyone breach your privacy. So, okay, bye everyone. Okay, bye. Bye, See you sir. next. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, bye, bye. Bye, sir. Bye everyone.